Friends, warm welcome to all in yet another new class of management accounting. In our previous classes, as we discussed about management accounting and how management accounting is introduced as a special branch of accounting and for what purpose. So, we can understand the purpose or objective of discovering a new thing behind its past, behind its history, what we call. So what was the history that we have discussed in our last classes? That we have financial accounting, cost accounting, but both the branches of accounting, financial accounting, cost accounting, could not fulfill what the management actually required. Okay, they focus only on few things. जो कि था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फोकस रहता है ओनली ऑन फाइनेंशियल मैटर, क्लियर, जो कि जो कुछ हो गया बस उसको रिकॉर्ड करो, है कि नहीं, इन क्वांटिटी, विदाउट एनालाइजिंग दोज थिंग्स, ओके, विदाउट प्रिपेयर रिपोर्ट्स एंड विदाउट कंसिडरिंग द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, परफॉर्मेंस, clear? And to overcome those things we develop cost accounting, but same cost accounting was also focused on cost ascertainment, cost control, cost reduction. Okay, it also consider the quantity of cost, relating to cost. So both the financial accounting, cost accounting fails to provide quality information to the management. Listen carefully. Both the accounting, that is cost accounting and financial accounting, fails to provide quality information regarding the skill, efficiency, growth, development, performance, comparison, past performance, present performance, future forecasting, clear, information about the business to the management, by which management could not take appropriate decision regarding how to expand, how to control, or how to solve our past problems, or how to improve the performance, clear, or what is our performance, level of performance, because everybody wants to check their performance level, yes or no, from their past to present. But both the accounting, financial accounting and cost accounting, fails to provide performance information, means any information regarding performance to the management, to the top authority. So how they could take decisions, make policy, forecast the future, yes or no? So these things, or these were the limitations of financial accounting, cost accounting. Okay, and consequently the competitions also increased in the market, in the global point of view, yes or no? So at that time, all means the eminent persons in the field of accounting, in the field of business, they seek to develop a new concept which can help management in taking decisions, making policy, and judge on the performance of the management and performance of the organization. Okay, so to overcome the limitations of financial accounting, cost accounting, the management accounting is newly developed. Okay, clear? That was the scene or history behind the development of management accounting. Clear? So I hope, मुझे ऐसा लग रहा है, एंड आई एम श्योर कि पिछले जो दो क्लासेस में, पिछले जो 2-3 क्लासेस में आपने जो देखा, अपना जो वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप वो 2-3 वीडियो देख लीजिए पहले, फिर ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगा ये वीडियो का, ठीक है? तो वो क्लासेस में जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या काम करता है, तो उससे हमने कुछ जजमेंट कर लिया कि क्या क्या प्रोवाइड नहीं कर पाता ये मैनेजमेंट को, है कि नहीं? जो कि सिर्फ क्या किया, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, क्लियर एंड इंटरप्रेट करके रख दिया बस. उसके बाद और बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि वेरी रिक्वायर्ड हैं फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पज, टू इन्फॉर्म इट टू द यूजर्स, टू टेक वेरियस
decision, to make policies, to forecast future, to plan for growth, expansion, innovation. Clear? जो कि है एनालाइज करना इंफॉर्मेशन को, बोथ इंफॉर्मेशन. क्लियर? एनालाइज करना, नॉट ओनली मॉनिटरी बट ऑल्सो क्वांटिटी, क्वालिटी, परफॉर्मेंस, एवरीथिंग, सबको करना. एनालाइज करना, उसको रिपोर्ट बनाना और फिर उसको कम्युनिकेट करना. ये जो तीनों चीज को मिसिंग था दोनों में, तो उसको ओवरकम करने के लिए डेवलप किया गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ठीक है? क्लियर? तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप सब लोग पढ़ चुके हो अपने प्रीवियस क्लास में. कॉस्ट अकाउंटिंग कोई कोई पढ़ रहा होगा शायद अभी, जिनका 4th इलेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग. क्लियर? बट according to our syllabus, I am covering the 4th elective, that is fundamentals of management accounting. So our focus is on management accounting, not on cost accounting. Cost accounting जिसका फोकस है वो डिटेल में और पढ़ेगा रिगार्डिंग कॉस्ट अकाउंटिंग, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. कॉस्ट अकाउंटिंग जिसका इलेक्टिव है 2 है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. जिसका कॉस्ट इलेक्टिव है वो कॉस्ट में जाएगा, जिसका मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट जाएगा. दोनों बस एक दूसरे के बारे में इंट्रोडक्शन नहीं पता है, दोनों एक दूसरे के बारे में अभी नहीं पढ़ सकते, वो आप आगे क्लास में पढ़ोगे डेफिनेटली. जो अभी कॉस्ट लिया है वो मैनेजमेंट पढ़ेगा आपके ग्रेजुएशन में, और अभी जो मैनेजमेंट ले रहा है डोंट वरी, वो कॉस्ट भी पढ़ेगा अपने ग्रेजुएशन क्लासेस में. क्योंकि व्हेनेवर यू आर एंटर इनटू अकाउंटिंग यू मस्ट लर्न एंड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन और गेन इंफॉर्मेशन, क्लियर नॉलेज अबाउट ऑल दी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. आपको सब ब्रांचेस के इंफॉर्मेशन आपको नॉलेज आपको मिलेगा, बट टाइम टू टाइम. ठीक है? तो आवर फोकस इज ऑन फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के आगे हम ग्रोथ करेंगे. ठीक है? ओके. सो जैसे कि सबसे पहले क्या है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अभी तक, इतने तक, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेसिक टास्क क्या है. क्लियर? द बेसिक टास्क ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू एनालाइज. ओके? इज टू एनालाइज. क्लियर? एनालिसिस करना, एनालाइज एंड इंटरप्रेट. ये फिर से करेगा. आप बोलोगे कि सर इंटरप्रिटेशन तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर दिया था. यस, कर दिया था, वो अपने हिसाब से किया था, जो कि ओनली क्वांटिटी को मेजर करता था. यहां पे क्वालिटी को भी मेजर किया जाएगा. ठीक है? टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट. ओके? एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, फिर इसको क्या करना, रिपोर्ट बनाना, रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग. क्लियर? ठीक है? तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एज लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड पेपर था जिसमें कि हमें प्रॉब्लम करना पड़ता था, है कि नहीं? नॉट ओनली थियोरिटिकल, थ्योरी प्लस प्रॉब्लम. वैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी आपको क्या आएगा, आपको प्रॉब्लम्स करना पड़ेगा. प्रॉब्लम मतलब क्या? यू हैव टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन. जो भी इंफॉर्मेशन उससे पहले जो भी बनाया था हमने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यस और नो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके? जो भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया था, वो सारे चीजों को मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहां से शुरू करेगा? एनालाइज करेगा अच्छे से. मैनेजमेंट को जो भी रिक्वायरमेंट है, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट मतलब द टॉप अथॉरिटी. क्लियर? मैनेजमेंट जो भी सीख करेगा. क्लियर? व्हाट मैनेजमेंट वांट, what management want whenever, clear, and however, जैसे भी. आ रहा है समझ में आपको? मैनेजमेंट मतलब जो टॉप अथॉरिटी, जो के डिसीजन लेंगे, उनको चाहिए कि what management want. वो बोलेगा कि मुझे क्या चाहिए. क्लियर? मुझे क्या रिपोर्ट चाहिए. फिर when, कब चाहिए, कौन से पीरियड का चाहिए, कब तक चाहिए, एंड हाउ एवर, कैसा चाहिए, कैसा रिपोर्ट चाहिए. वो पूरे के पूरे जो डिटेल्स है ना, ये मैनेजमेंट सीख करेगा, मतलब मांगेगा. क्लियर? किसको? मैनेजमेंट अकाउंटिंग को. मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब मैनेजमेंट अकाउंटेंट को मांगेगा, जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हैंडल करता है, ऑपरेट करता है. ठीक है? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करेगा, ये जो भी वॉट एवर मैनेजमेंट वांट्स, उसको क्या करेगा, वो सारे के सारे एनालाइज करेगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. उसको एनालाइज करेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा. नो टाइम बाउंडिंग. क्लियर? नो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड प्रोसीजर्स. नो मींस आप बोल सकते हो कि ऐसा कुछ भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं है. मैनेजमेंट आप समझ लो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ए असिस्टेंट ऑफ मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट और मैनेजमेंट अकाउंट. अपना जो हेड है, सीईओ, उन लोगों का टॉप लेवल का, ये इन लोगों को जब भी
कोई भी रिक्वायरमेंट होगा, हेल्प चाहिए रिगार्डिंग आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लियर, कि कुछ भी, कि मुझे ये डिसीजन लेना है, मुझे कॉस्ट को लेके एक डिसीजन लेना है, मुझे रिपोर्ट दो, क्लियर, 1 दिन का और 1 महीने का और लास्ट 1 ईयर का और 5 ईयर का, वो लाके दे देगा। ठीक है, कौन? मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो प्रिपेयर करके देगा, एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके। ठीक है, ये बोलेगा कि मुझे जानना है कि मेरे जो एसेट्स हैं, ठीक है, एसेट स्पेशली माई इंटेंजिबल एसेट, उसका पॉलिसी मुझे बताओ, उसका स्टेटस मुझे बताओ, वो उसको भी प्रिपेयर करके दे देगा। ठीक है ना? और वो बोलेगा मेरा जो लाइबिलिटी साइड है, लाइबिलिटी में मेरा जो है डेप्ट जो है, इधर डिबेंचर ले लो और नहीं तो इक्विटी ले लो और नहीं तो प्रेफरेंस ले लो, उसके रिलेटेड मुझे एक रिपोर्ट चाहिए, एक एनालाइज्ड रिपोर्ट चाहिए, इंटरप्रेट करके दो, तो वो उसको भी दे देगा। दैट मींस उसका कोई हार्ड एंड फास्ट स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि ये ऐसा करेगा वैसा करेगा, एज लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये मतलब एक असिस्टेंट टाइप का है। ये जब भी कोई भी कुछ भी अगर मांगेगा तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसको प्रिपेयर करके दे सकता है। उतना है ये क्वालिटेटिव मेजर, क्वालिटेटिव ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है ना? क्लियर? और फिर क्या करेगा वो रिपोर्ट, और फिर अकॉर्डिंगली दे कैन कम्युनिकेट दोस थिंग्स। आ गया ना समझ में? क्लियर? तो ये है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम। तो इसमें यू मस्ट गेन नॉलेज, आपको पूरा का पूरा नॉलेज आएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, पूरा अपना कोर्स जो है पढ़ेंगे हम। तो in this you get knowledge about how, or first of all what is management accounting. There are various theoretical concepts are there. You must learn, you must understand these theories, these theoretical concepts. आपको theoretically वो सारी चीजों को याद रखना है जो कि हम पढ़ेंगे। क्या? इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव। क्लियर? ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, उसका स्कोप्स क्या है, स्कोप्स मतलब स्कोप, ओके, बहुत सारे स्कोप हैं, और फंक्शंस, एडवांटेजेस, लिमिटेशन एंड द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटेंट मतलब ऑब्वियसली जो अकाउंटिंग को संभालता है उसको हम अकाउंटेंट बोलते हैं, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को मतलब हैंडल करता है उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटेंट, जो कॉस्ट को हैंडल करता है हम उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट, और जो मैनेजमेंट को हैंडल करता है हम उसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ओके, क्लियर? ठीक है ना? तो ये हो गया रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। फिर हम देखेंगे डिफरेंस, मतलब कंपेयर करेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में हम कंपेयर करेंगे कि कौन बेहतर है। ठीक है? और मैनेजमेंट को कॉस्ट के साथ भी हम कंपेयर करेंगे कि कौन बेहतर है और कौन क्या काम करता है और कौन कौन से बेसिस से डिफरेंशिएट है एक दूसरे से। इतना थ्योरेटिकल करने के बाद फिर हम जाएंगे अपने जो कि प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू, प्रॉब्लम पार्ट को, जो कि है हम वी लर्न हाउ टू एनालाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न, हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डोंट वरी, आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुका है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ये सुनो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, उसमें क्या क्या जाता है। ठीक है? प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट एंड द स्टेटमेंट ऑफ ओनर सिक्योरिटी, डेप्ट, है कि नहीं? तो ये सारे हैं, तो वो हम थ्योरेटिकली फिर से पढ़ेंगे। डोंट वरी, क्लियर? अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम वो पढ़ेंगे इन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हाउ टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर? मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज वेरियस टेक्निक्स, देयर आर वैरायटी ऑफ टेक्निक्स आर देयर, वो हम देखेंगे कौन कौन है टेक्निक्स। बाय यूजिंग दोज टेक्निक्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग एनालाइज द फुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, financial statement according to the requirement of the management. Okay, and then वो क्या करेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा जो भी चाहिए उसके हिसाब से, फिर उसको रिपोर्ट बनाएगा, फिर कम्युनिकेट कर देगा। ओके, क्लियर? ठीक है ना? तो इसके हिसाब से दिस इज व्हाट द सिलेबस फॉर यू नाउ, जो कि हम अपने सब्सिक्वेंट क्लासेस में ये सारे चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है? ये जो थ्योरीज एंड ये जो है प्रॉब्लम पार्ट्स। ओके, क्लियर? आगे समझ में है कि नहीं? तो आई होप इतने में आपको सबको नॉलेज आ गया, बेसिक नॉलेज कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक्चुअल काम क्या है। और जैसे कि हमने देखा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का दोनों का जो भी लिमिटेशंस थे, वो दोनों लिमिटेशंस यहां कॉस्ट अकाउंटिंग में जितने भी लिमिटेशंस थे सारे के सारे लिमिटेशंस यहां पे ओवरकम हो जाते हैं। क्लियर? सॉल्व हो जाते हैं, जिससे कि मैनेजमेंट मतलब टॉप मैनेजमेंट, क्लियर,
टॉप लेवल अथॉरिटी जो कि हैं अपने डिसीजंस लेते हैं, उन लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी अभी। क्लियर? उसके बाद वो लोग आसानी से कोई भी डिसीजंस ले सकते हैं। ओके, क्लियर? सो इन आवर सब्सिक्वेंट क्लासेस वी विल डिस्कस दोज थिंग्स। ओके, क्लियर? तो चलो आज हम शुरू करते हैं। कोई फर्स्ट दैट इज इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग से शुरू करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो इंट्रोडक्शन मीनिंग, जैसे कि मैंने आपको बोला है, आई ऑलवेज से कि थियोरिटिकली चीजों को कैसे लिखना, क्लियर, वो दैट इज नॉट ए मैटर, ऑल आर अवेलेबल इन टेक्स्ट बुक, आपके पास बहुत है, इंटरनेट पे पीडीएफ भी मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द मैटर इज यू हैव टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। ठीक है, सो मेरा ऑब्जेक्टिव है, माई ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू डिक्टेट यू द थिंग्स। डिक्टेट करना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि जो लिखना है, जो लिखावट है, वो आप खुद टेक्स्ट बुक से देख के लिख सकते हैं। माई ऑब्जेक्टिव इज टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसके हिसाब से ही मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, तो सबसे देखो, उसके हिसाब से मैं देखूंगा कि इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग हम कैसे देखेंगे, जानेंगे। उसके हिसाब से देखो, इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग जैसे कि क्या है कि जैसे कि आपको मैंने बोल दिया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत सारे डीमेरिट्स देखे गए, बहुत सारे लिमिटेशंस देखे गए, जो कि ये डेवलप नहीं कर पाया, मतलब जो भी हमें रिक्वायरमेंट था वो ये हमें नहीं दे पाया। इसके लिए क्या हुआ, इन द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1950। ओके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फर्स्ट used in 1950। 50 क्लियर, 1950 में सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डेवलप करके यूज किया गया था, है कि नहीं? बाय ए टीम ऑफ अकाउंटेंट, बाय ए टीम ऑफ अकाउंटेंट्स। एक अकाउंटेंट का टीम था जिन्होंने 1950 में सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग को यूज किया था। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है, बिट क्वेश्चन में, कब हुआ था मैनेजमेंट अकाउंटिंग इवॉल्व। ठीक है, सो कहां पे, विजिटिंग यूएसए, जिन्होंने की क्या किया था कि इन्होंने विजिट किया था, विजिटिंग यूएसए। ठीक है, विजिटिंग यूएसए अंडर द auspices of मतलब किसके अंडर में काम करने के लिए गए थे, अंडर एंग्लो अमेरिकन काउंसिल ऑफ प्रोडक्टिविटी। एंग्लो अमेरिकन काउंसिल ऑफ प्रोडक्टिविटी। क्लियर, इनके अंडर एक अकाउंटेंट टीम गए थे, एंग्लो अमेरिकन काउंसिल ऑफ प्रोडक्टिविटी यूएसए का। ठीक है, इन्होंने विजिट किया था, विजिट किया था यूएसए, एक टीम ऑफ अकाउंटेंट जिन्होंने की सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग को यूज किया था। ओके, तो क्यों किया, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एज वी नो the trend in business, clear, the trend in business changed very drastically, drastically मतलब बहुत ही तेजी से और बहुत सारा कुछ चेंज हो गया। ओके, drastically it emerged the requirement for strong decision making, forecasting, clear, forecasting, performance
परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इंप्रूवमेंट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इंप्रूवमेंट। ओके, परफॉर्मेंस को मेजर करना एंड इंप्रूव करना। क्लियर? सस्टेन इन कट थ्रोट कंपटीशन। ठीक है, तो ये जो सारे जो ड्रास्टिकल चेंज हुए अपने इन जो द फील्ड ऑफ बिजनेस, ये सारे में देखा गया कि हमें अभी ये सारे चीजों को वी हैव टू अचीव, दोज आर वी हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, वी हैव टू फोरकास्ट द फ्यूचर। क्लियर? देन वी हैव टू मेजर आवर परफॉर्मेंस एंड ट्राई टू इंप्रूव इट, एंड वी मस्ट सस्टेन इन द कट थ्रोट कंपटीशन। कंपटीशन जोरदार बढ़ गया, वहां पे हमें सस्टेन करके रहना है। तो ये सारे चीजों को देख के डेवलप किया गया, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग यही चीजों को करवाता है, डेवलप किया गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। ओके, क्लियर? ठीक है ना? सो ये क्या हुआ? बाय लुकिंग to those requirements, management accounting, by those requirements, management accounting fulfill almost all the requirements. By looking to those requirements, management accounting fulfill almost all of it. Hence, focus was given to adopt it in business as a special branch of accounting. अकाउंटिंग का एक स्पेशल ब्रांच के हिसाब से उसको डेवलप सेट किया गया। क्लियर? विच विल हेल्प अस इन टेकिंग डिसीजन, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, प्लान्स, फोरकास्ट, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, मेजरमेंट इंप्रूवमेंट, एंड हाउ टू सस्टेन इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि अगर आपको कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, देखो मैं एक एक समझा रहा हूं, डिसीजन मेकिंग एनालिसिस हो गया, जैसे मैंने बोला कि हमें मैनेजमेंट बताएगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कौन से चीज को लेके एक डिसीजन लेना है, बस वही चीजों का इंफॉर्मेशन वो क्या करेगा, मैनेजमेंट अकाउंटेंट टीम वो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन दे देगा, जिससे कि विदाउट टेकिंग मच एफर्ट, विदाउट टेकिंग मच टाइम, मैनेजमेंट अकाउंट इजीली उसको पढ़ लेगा, समझ लेगा, उसको रिलेटेड डिसीजन दे देगा। है कि नहीं? क्लियर? और जो है फोरकास्ट, बस उसके हिसाब से हम कंपेयर कर सकते हैं अपने, मतलब स्टार्टिंग से लेके, जब सोचो कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया 2000 में, 2001 में क्या हुआ, व्हाट इज द रिलेशन और व्हाट इज द ग्रोथ रेट, व्हाट इज द परफॉर्मेंस, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, अब तक 2020 तक मेरा परफॉर्मेंस क्या है उसको जज करो। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आई विल फोरकास्ट माय फ्यूचर इन नेक्स्ट 5 ईयर, कि मैं नेक्स्ट 5 ईयर में क्या क्या करूं, क्या क्या कर सकता हूं। क्लियर? तो उसके हिसाब से ये फोरकास्ट भी किया। देन क्या हुआ, परफॉर्मेंस मेजरमेंट इंप्रूवमेंट, बस ये तो हो गया। बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ वेरियस टेक्निक्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पास बहुत ही डायनामिक टेक्निक्स हैं, ठीक है, जो कि हम देखेंगे, बहुत सारे हैं टेक्निक्स, जिसको कि लेके वो कोई भी इंफॉर्मेशन को कैसे भी टाइप में एनालाइज कर सकता है और उसको रिलेटेड रिपोर्ट बना सकता है फॉर द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। ओके, एंड सस्टेन इन द कटथ्रोट कंपटीशन। आपको पता है कि अगर आपको कटथ्रोट कंपटीशन, मतलब आज का जो कंपटीशन है, कटथ्रोट उसको क्या बोलते हैं, कटथ्रोट मतलब आप कंपटीशन में हैं, इफ यू, आपका अगर प्लान अगर सक्सेस हो गया तो आप रह गए, अगर नहीं हुआ तो इमीडिएटली कट मतलब कट हो जाओगे, मार्केट से पूरा हट जाओगे, ऐसा है कंपटीशन। मतलब ए नंबर ऑफ सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, बिजनेसमैन, प्रोड्यूसर आर देयर इन द मार्केट। इसका मतलब आपने मार्केट में पढ़ा होगा, ठीक है, और नहीं तो हम आगे पढ़ेंगे मार्केट के बारे में, कि मार्केट में अभी ऐसा है, जो कि पुराना मार्केट था, सेलर बहुत कम थे, बायर बहुत ज्यादा थे, है कि नहीं। इसके लिए देयर वाज नो ऑप्शन, ऑप्शन कुछ नहीं था, सेलर कुछ भी दे, बायर को लेना जरूरी था, जिसको हम बोलते हैं
क्या सेलिंग कॉन्सेप्ट था, बट अभी क्या हो गया मार्केटिंग। हम सेलिंग यूज करते हैं वर्ड, नहीं मार्केटिंग वर्ड यूज करते हैं। क्यों? इसका मतलब क्या है कि नाउ ए डेज द नंबर ऑफ कस्टमर्स आर देयर, अकॉर्डिंगली जितना है वो बढ़ता जाता है, बट द नंबर ऑफ सेलर्स नाउ ए डेज इज वेरी वास्ट, बहुत सारे हैं। इसके क्या होता है, एक कस्टमर को पहले एक चीज खरीदने के लिए मतलब जब वो जाता था उसको सिर्फ एक ही मिलता था, वो सोचता था कि कैसे मैं ये ले लूं, अगर ये भी नहीं लिया तो और कोई ले जाएगा, बस उतने में चलता था। तो चलो मिल गया तो एटलीस्ट, वो अच्छा है बुरा है खराब है कैसा भी है, चलो मिल गया एटलीस्ट। बट अभी क्या है, अभी ऐसा नहीं है। एक कस्टमर मार्केट में जाता है तो उसके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस रहते हैं। कोई सेलर कोई अच्छा प्राइस देता है, कोई अच्छा कलर देता है, कोई अच्छा क्वांटिटी देता है, कोई अच्छा सर्विस देता है, कोई अच्छा कोई कौन अच्छा देता है। तो इसके हिसाब से क्या है, मतलब सी व्हाट हाउ कैन यू जज द माइंड ऑफ द कस्टमर। आपको वेल अलर्ट रहना पड़ेगा, अगर नहीं रहे तो कट हो जाओगे मार्केट से, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, क्लियर। मतलब वी मस्ट, और भी है एक चीज है कि हम अपने कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करें। कैसे करेंगे सेटिस्फाई? ऑब्वियसली हम उसको बताएंगे, उन लोगों को बताएंगे कि अपना बिजनेस का वैल्यू क्या है, पोजीशन क्या है, स्टेटस क्या है, बाय प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स एंड कम्युनिकेट इट टू द यूजर्स इन ए फ्रेंडली मैनर। जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आप बोलोगे कि सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी तो मतलब इंफॉर्मेशन देता है यूजर्स को, बट दोज इंफॉर्मेशन आर फाइनेंशियल नेचर। सोचो कि अगर मैं एक कस्टमर हूं, मैं एक यूजर हूं, मुझे फाइनेंस के बारे में नहीं पता है, मैं साइंस स्टूडेंट, मैं वो स्टेटमेंट पढ़ के कुछ समझ पाऊंगा? सोचो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमारा जो है कॉमर्स स्टूडेंट का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम जो बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट, उसको अगर आप लेके आप एक साइंस स्टूडेंट के पास रख दोगे, आर्ट स्टूडेंट के पास रख दोगे, तो उसमें वो क्या समझेगा? कुछ नहीं, बस वो फिगर्स को देखेगा, हाँ बड़ा है छोटा है, बस क्लियर। और बड़ा छोटे का वैल्यू नहीं है, क्लियर। बड़ा छोटे का मतलब हाई फिगर लो फिगर का वैल्यू नहीं है। द मैटर इज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट पर्टिकुलर फिगर, वो हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बताता है। कौन बताता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो उससे क्या होता है, कोई भी एक कस्टमर ले लो, वो इजिली समझ जाएगा कि हाँ बिजनेस का वैल्यू क्या है, स्टेटस क्या है, अकॉर्डिंगली दे कैन ट्रस्ट अपॉन द बिजनेस, क्लियर। द कस्टमर ले लो, सप्लायर ले लो, हमारा जो डेप्टर ले लो, क्रेडिटर ले लो, गवर्नमेंट ले लो, एजेंसीज ले लो, कोई भी ले लो, क्लियर। सब हमारे ऊपर ट्रस्ट करेंगे, जिससे कि हमारा मार्केट शेयर बढ़ेगा, एंड इन दैट से वी कैन सस्टेन इन दी कंपटीशन, ठीक है। कटथ्रोट कंपटीशन में भी हम सस्टेन कर पाएंगे, क्लियर। बस ये जो सारे चीजों को मैनेजमेंट अकाउंटिंग फुलफिल कर देता है, इसीलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डेवलप किया गया और इसको एडॉप्ट किया गया एज ए स्पेशल ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, ओके, क्लियर। देन और क्या होता है, देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जैसे कि मैंने सबसे पहले बोल दिया था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नथिंग, क्लियर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये सब इंट्रोडक्शन में जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का एक एक्सटेंशन है, ठीक है। टू फैसिलिटेट मैनेजमेंट टू टेक prompt decisions, okay, making plans and policies, forecast future, okay, improve performance, here, and consider the quality information for various decisions। क्योंकि डिसीजन हम सिर्फ प्राइस को देके नहीं ले सकते, वी कैनॉट टेक डिसीजन ओनली बेस्ड अपॉन फिगर्स। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? द क्वालिटी इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, है कि नहीं? फिगर सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है,
जैसे कि मैं आपको बोलूंगा कि आप मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, एक सेलर है आपको बोल रहा है कि ये मैं 10,000 में दूंगा, और एक सेलर बोल रहा है कि ये मैं आपको 12,000 में दूंगा, ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ 10,000 कम है, चलो ये ले लेते हैं, बट द क्वालिटी मैटर। उसके बाद आप ऐसे लेते हो नहीं, आप क्या एनालाइज करते हो, उसकी क्वालिटीज की क्वालिटी क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हो, बोलो भाई, कि RAM क्या है, उसका रोम क्या है कि नहीं, उसका प्रोसेसर क्या है, ये सब नो, उसका कैमरा क्वालिटी क्या है, क्लियर। ये सारी चीजों को हम मेजर करते हैं, दैट इज क्वालिटी। एवरी डिसीजन इज इंपॉर्टेंट, क्लियर, एवरी डिसीजन इज इंपॉर्टेंट टू टेक बेस्ड अपॉन क्वालिटी, नॉट ओनली क्वांटिटी, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी, क्लियर। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि जो कि अपना CMA का जो है कि स्लोगन है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेस डिसीजन देयर इज ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। क्यों बोलते हैं ये, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, CMA क्या करते हो आप, कॉस्ट भी पढ़ते हो मैनेजमेंट भी पढ़ते हो, दोनों पढ़ते हो, है कि नहीं। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन वी कंसिडर द क्वालिटी इंफॉर्मेशन which is very important. If we ignore the quality information, then we could not take, then we can't take, we can't take the important decisions. वो जो डिसीजन भी हम लेंगे वो सारे के सारे खराब हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ओके, क्लियर, बस सिंपल है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द एक्सटेंशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दोनों ने मिलके जो काम नहीं कर पाए, अभी वो दोनों को मिला के और कुछ स्पेशल ऐड करके हम अपना जो था, जो की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। ओके, क्लियर। सो वी कैन से मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज असिस्ट मैनेजमेंट, असिस्ट मतलब हेल्प करता है, जैसे कि मैंने बोला आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्लियर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन असिस्टेंट टू द मैनेजमेंट, और जिसको हम बोलते हैं टॉप लेवल, क्लियर, टॉप लेवल प्रोफेशनल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज असिस्टेंट टू द मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट। बस उसको जब भी कुछ भी कोई भी अगर चाहिए तो वो किससे मांगेगा, इसको ही मांगेगा, और कुछ भी मांग सकता है। असिस्टेंट का मतलब तो आपको मालूम है, कुछ भी जो भी मांगेगा ये इन लोगों को प्रोवाइड करेगा, है कि नहीं। जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्टली प्रोवाइड करता है, ऐसा नहीं कि प्रोवाइड नहीं करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्टली ओनली क्वांटिटी, दैट इज बेस्ड अपॉन फाइनेंस। कॉस्ट अकाउंटिंग दैट इज आल्सो पार्टली, दैट इज बेस्ड अपॉन ओनली कॉस्ट, क्लियर, दोनों इंपॉर्टेंट है। बट वो दोनों को मिला के मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसको और बेटर वे से एनालाइज करके मैनेजमेंट अकाउंटिंग को फिर इंफॉर्मेशन दे देता है। ओके, तो ये असिस्ट करता है फॉर मेकिंग प्लान, पॉलिसी, फॉर्मुलेट डिसीजंस, क्लियर, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, मेजरमेंट एंड टू टेक क्वालिटी डिसीजंस। ओके, क्लियर, आगे समझ में। नाउ मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज वेरियस डायनामिक टेक्निक्स टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये क्या करता है, बहुत सारे डायनामिक, ओके, वेरियस डायनामिक टेक्निक्स ये यूज करता है, जिससे कि क्या होता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को आसान हो जाता है, मतलब इजी हो जाता है, क्लियर, टू टेक वेरियस डिसीजंस, ठीक है ना। आ रहा है समझ में। तो क्या होता है कि इसके पास ऐसे बहुत सारे डायनामिक टेक्निक्स हैं। ओके, तो क्या है वो टेक्निक्स, जैसे कि है कंपेयर करता है, ओके, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ओके, ट्रेंड एनालिसिस, ये है उसके सारे जो हम बोल सकते हैं, ये है उसके वेपन्स, हथियार, टेक्निक्स, डायनेमिक टेक्निक्स, जिसको यूज करके मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत बढ़िया डिसीजन ले सकता है। ओके, क्लियर। ट्रेंड एनालिसिस, देन है रेशियो एनालिसिस,
trend analysis, ratio analysis, okay, then cash flow statement, fund flow statement, okay, working capital analysis, then budgeting. क्लियर? ये जो सारे हैं उसके क्या है, टेक्निक्स हैं जो कि यूज करके मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत प्राइम डिसीजन ले सकते हैं. प्राइम मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट. देख लो अच्छे से, देख लो थोड़ा. कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, ओके, देन रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, वर्किंग कैपिटल एनालिसिस एंड बजटिंग. क्लियर? हम बोलते हैं कि ये जो सारे हैं ना, ये जो सारे हैं उसके क्या है, वेपन्स हैं जिससे कि वो हर कोई एक डिसीजन ले सकता है व्हाट इज वांटेड बाय मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट टीम. ओके, एंड व्हेनेवर, व्हाटएवर, व्हेनेवर, कुछ भी, कब भी. क्लियर? ओके, so this is about the introduction of management accounting. Clear? Meaning and introduction दोनों हो गए, है कि नहीं? Now if we define management accounting, अगर हम management accounting को अच्छे से define करेंगे, ठीक है? So as the one or the team who developed this, the concept of management accounting, कौन है वो? Anglo-American Council of Productivity. Okay, define management accounting as, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को उसने क्या डिफाइन किया है? क्लियर? वो बहुत ही बढ़िया वे में डिफाइन किया है. क्या है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज, देखो ये डेफिनेशन को आप लिख लो. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इज द प्रेजेंटेशन ऑफ accounting information, presentation of accounting information, okay, presentation of accounting information in such a way, मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रेजेंट करता है. प्रेजेंट मतलब पहले एनालाइज करता है, रिपोर्ट बनाता है और फिर उसको प्रेजेंट करता है इन सच ए वे एज टू ऐसा करता है जो कि असिस्ट करता है, एज टू असिस्ट मैनेजमेंट इन द क्रिएशन ऑफ पॉलिसी, in the creation of policy and day-to-day operations of an undertaking, and day-to-day operations of an undertaking. Undertaking मतलब जो भी इसको लेगा, कोई भी अंडरटेकिंग मतलब कोई भी अगर उसको यूज करेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग को, तो उसके डे टू डे डिसीजन, मतलब स्पेशली उसको हम बिजनेस लेंगे, ठीक है, डे टू डे डिसीजंस को लेके, ओके, और पॉलिसी को लेके जो कि हमने पढ़ा, फोरकास्टिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, परफॉर्मेंस, डिसीजन मेकिंग, मेजरमेंट, एवरी डिसीजन ये लेता है. तो दे डिफाइन दैट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ओके, इन सच ए वे एज इट असिस्ट द मैनेजमेंट in creation of policy and to take day-to-day operations. Clear? Take day-to-day operations को लेके एक हम बढ़िया बेहतरीन कैसे बना सकते हैं, that is based upon that. Okay? Clear? आ गया समझ में? ठीक है ना? तो that is the introduction, meaning and definition of management accounting. Now let's see the features of management accounting. क्योंकि फीचर्स अगर हम पहले पढ़ लेंगे
तो हमको पता चल जाएगा, वी कैन इजिली रियलाइज the value of management accounting. जैसे कि मैंने आपको बोल दिया, what is your behavior, what is your attitude, according to that you will definitely do your functions, your objective, your life, your career, everything. Clear? Everything that is based upon your features, your qualities, your characteristics, your quality, your attitude. Clear? तो उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम और जो बाकी चीजें हमने देखा वो चीजों को डिस्कस करेंगे. ओके, तो चलो देखते हैं द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. So students, these are the various features or nature or characteristics or qualities of management accounting. Okay, so जैसे कि अब तक हमने जान लिया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या क्या काम करता है, ठीक है, और जो काम करता है डेफिनेटली उसके बेसिस के हिसाब से और उसके क्वालिटी के हिसाब से और उसके जो हम बोलते हैं फीचर्स के हिसाब से. तो क्या है उसके बेसिक फीचर्स? देखो, जैसे कि ये है सारे जो बेसिक फीचर्स जो कि है सप्लीमेंट डिसीजन मेकिंग, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड. क्लियर? सप्लीमेंट, ये सब मैं एक एक समझाता हूं आपको. ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, पार्टली साइंस एज एन आर्ट, फिक्स स्टैंडर्ड्स, फ्यूचर ओरिएंटेड और व्हाट वी कॉल फोरकास्टिंग, यूज डायनेमिक टूल्स एंड टेक्निक्स, देन सप्लाई इंफॉर्मेशन, नो फिक्स्ड नॉर्म्स, एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, देन मॉडिफाई डाटा, एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, एंड लास्ट the assist in policy formulation. Okay, तो देखो हम समझते हैं पहले जो कि है 12 फीचर्स क्या क्या हैं. क्लियर? तो देखो सबसे पहले लेते हैं सप्लीमेंट डिसीजन मेकिंग. ओके, सो एज जैसे हमको पता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, जो भी डाटा इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसके बेसिस पे डिसीजन नहीं लेता है. वो क्या करता है, इट डिपेंड अपॉन द इंफॉर्मेशन. क्लियर? और सप्लीमेंट्स मतलब इंफॉर्मेशन और व्हाट एवर रिक्वायरमेंट्स व्हाट मैनेजमेंट वांट, वो किससे मांगता है? मैनेजमेंट अकाउंट को ही मांगता है. मतलब व्हाट एवर इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड बाय द मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग. क्लियर? तो उससे होता क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग व्हाट एवर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दोज आर बेस्ड अपॉन फैक्ट, फिगर, ओके, लॉजिकल, इंपॉर्टेंट और क्वालिटी इंफॉर्मेशन. So according to which management can take supplement or management can take important decision, can make decisions according to that particular information, which is always proved to be good, best. Clear? So that is the value of management accounting or features of management accounting, that it help or supplement decision making. Supplement मतलब help करता है management को decision making के लिए. और decision making मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी decision, it help in important and best decision making. Clear? आगे समझ में how, what is the point supplement decision making. Clear? Next is objective oriented. Yes, obviously जैसे कि management accounting as this point, ये point को भी हम establish कर देते हैं, no fixed norms. Clear? ये point को भी मैं बोल देता हूं अभी कि जैसे कि as we know management accounting follow no fixed norms as like financial accounting. क्लियर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए जैसे कि जो प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, गैप प्रोवाइड करता है, आईएफआरएस प्रोवाइड करता है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, उसका फॉर्मेट, उसका रूल्स, वैसा कुछ नहीं है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में. ये क्या है, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि व्हाट मैनेजमेंट वांट एंड व्हेन वांट, उसको जब भी, जो भी, जिससे भी, जैसे वे में भी चाहिए, बस वो क्या करता है, उसको एनालाइज करके रिपोर्ट बना के मैनेजमेंट को इन प्रिसाइज वे, प्रिसाइज मैनर में, मतलब जितना चाहिए बस उतना ही. फाइनेंशियल अकाउंट में पैराग्राफ रहेगा, पैराग्राफ पढ़ने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब मैनेजमेंट टीम के लिए पास टाइम नहीं है. उनको चाहिए कि बस एक ऐसा लाइन बोलो, एक ऐसा वर्ड बोलो जिससे कि मुझे पता चले मेरा परफॉर्मेंस क्या है कि नहीं. आप अगर जाते हो परफॉर्मेंस जानने के लिए, अपना स्टूडेंट्स एज ए स्टूडेंट्स, आपके टीचर, आपके पेरेंट्स अगर जाएंगे परफॉर्मेंस जानने के लिए, तो वो बोलेंगे कि हाँ ये अच्छा करता है, वो करता है, ये करता है, वो करता है, पूरा हिस्ट्री बोलेंगे. नहीं, वो बोलेंगे इतना नहीं जाना है, मुझे अपना ओवरऑल प्रिसाइज वे में स्टेटमेंट बताओ कि मेरा स्टूडेंट, मेरा बच्चा अच्छा है कि खराब है. वो बोलेगा हाँ सेटिस्फैक्टरी और गुड और बेस्ट और बेटर. क्लियर? तो बस वही काम करता है कौन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मतलब इतना बड़ा लेंथी नहीं है, बस प्रिसाइज वे में आपको स्टेटमेंट देगा विदाउट फॉलोइंग एनी फिक्स्ड नॉर्म्स एंड नॉर्म्स मतलब नो स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन. बस आपको जैसे जितना चाहिए, जब भी चाहिए, जो वे में चाहिए वो उसको बना के दे देता है. तो उससे होता क्या है, देखो इसमें एक क्या आया बात कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, जो मैनेजमेंट उससे पूछता है, करने के लिए बोलता है. इट मींस
anything what management accounting do, clear, is based upon objective oriented. बस मैनेजमेंट में उसको बोला कि ये मुझे करके दो, इतना टाइम में करके दो, बस वो वही करके देगा इतना टाइम में. Clear? It means management accounting is not doing unnecessary things, clear, unnecessary activities. It only focus on the things, the task, the objectives, clear, which are given by the management, and it fulfill those things in a prescribed time. Clear? आगे समझ में ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड कैसे है? क्लियर, मतलब ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट अकाउंटिंग को जो चाहिए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, अकॉर्डिंग टू इट प्रिपेयर, एनालाइज स्टेटमेंट एंड प्रेजेंट द स्टेटमेंट. क्लियर. नेक्स्ट आ गया पार्टली साइंस एज एन आर्ट. बस ये पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है. क्या है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ए पार्टली साइंस एज एन आर्ट. क्यों उसको साइंस हम क्यों बोलेंगे? देखो, जैसे साइंस में क्या होता है, वी यूज फिक्स्ड some tools, some techniques, clear, some figures, some fact हम फॉलो करते हैं. ये सब नो साइंस में. तो ये क्या करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी, ये जो इंफॉर्मेशन जो डाटा यूज करता है वो कहां से आता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, कॉस्ट अकाउंटिंग से. वो जो फैक्ट फिगर कहां से आते हैं? दोज आर द फैक्ट फिगर विच इज ऑलरेडी हैपेंड, जिसको हमने रिकॉर्ड करके रखा है, बस वो यही रिकॉर्ड कर, यही यूज करता है, विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट प्रेजेंट विथ अज. क्लियर, जो कि हमारे पास है, बस वो यही को यूज करता है. सो दैट्स व्हाई वी कॉल मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज एन आर्ट, बिकॉज इट यूज द इंफॉर्मेशन, द डाटा विच इज प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, which are based upon the fact and figures. One thing. Second thing, management accounting also analyze those fact and figure in a logical way. Clear? In logical way, according to the requirement of the management. It take variety of decisions. It help or it those information, those data is used for various subjective decisions, judgments, logical decisions. Okay, and it also measure the quality performance, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं करता है, जो कि साइंस नहीं है. आर्ट मतलब we must think innovatively, we must judge the quality, the performance of the employees of our statements. बस ये काम करता है. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग फैक्ट एंड फिगर को भी यूज करता है, और वो फैक्ट एंड फिगर को लेके लॉजिकल डिसीजंस भी लेता है, क्वालिटी इंफॉर्मेशन को भी जज करता है, परफॉर्मेंस को भी मेजर करता है, अप्राइज करता है. So that's why we can say it is a science as well as art. Okay, clear? Next, fixed standard. Yes. So management accounting, जैसे कि मैंने आपको बोला, management accounting it helps in measure the performance. आपको performance को वो measure करता है. तो performance measure करना का मतलब क्या है? Performance measure करने का मतलब है what was you in past, in present. बस दिस इज कॉल्ड द परफॉर्मेंस को मेजर करना है कि नहीं. आप पास्ट में क्या थे, सोचो कि आपको पास्ट में 70% था, नाउ इन प्रेजेंट यू आर 80%. इट मींस योर परफॉर्मेंस से दैट यू आर इंप्रूविंग. ये सुनो, दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट. तो हमें ये डेफिनेटली चाहिए क्या? द पास्ट वी मस्ट वांट. तो इसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है कि देखो, ये साल का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये साल का जो आता है प्रॉफिट एंड लॉस फिगर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन जो आता है अपने एसेट्स का, लायबिलिटीज का, डेप्ट का, इक्विटी का, एंड वेरियस शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का. तो ये क्या करता है, ये देखता है कि ये अच्छा है कि बुरा है. कैसे? बस ये सबसे पहले क्या होता है, फिक्स स्टैंडर्ड. ये एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देता है. स्टैंडर्ड मतलब एक बेसलाइन कि इतना होना डेफिनेटली चाहिए. बस उसके हिसाब से देखता है, द स्टैंडर्ड इज फिक्स्ड. बाद नाउ दिस साल का परफॉर्मेंस आ गया, एक्चुअल परफॉर्मेंस, बस ये कंपेयर करता है कि नहीं. कंपेयर करने के बाद इट कैन टेक वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट डिसीजंस एंड कि किसको मतलब किसको मैनेज करना है, किसको कंट्रोल करना है, किस में बढ़ावा देना है, किस में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है, किसको कम करना है, कौन से एक्सपेंसेस को कैसे रिड्यूस करना है, कौन से रेवेन्यू जो है क्राइटेरिया को ज्यादा फोकस करना है. ये सारे इंफॉर्मेशन वो दे सकता है कि नहीं. क्लियर. एंड नॉट ओनली दीज फाइनेंशियल मैटर्स, अकॉर्डिंग टू दिस इट फिक्स स्टैंडर्ड आल्सो टू मेजर द परफॉर्मेंस, क्वालिटी परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स, द एम्प्लॉई स्टाफ्स. उनके भी जो परफॉर्मेंस को ये मेजर करता है कि जब ज्वाइन किए थे उनका परफॉर्मेंस लेवल क्या था, अभी उनका परफॉर्मेंस लेवल क्या है. क्लियर. उनका परफॉर्मेंस लेवल में, स्किल में, एफिशिएंसी में कितना ग्रोथ हुआ है, कितना बेनिफिट हुआ है. क्लियर. सो दिस इज द पॉइंट, इट फिक्स स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज. Clear? Next, future oriented. Yes. What management accounting analyze, interpret, prepare reports and communicate it to the users.
Along with it, according to the requirement of the management accounting, it help or it measure the future. Future means future oriented, future forecast. It measure the future, what will be our financial position in next 5 years, what profit we have to earn in next 5 years, what sale we need to improve, टर्नओवर कैसे हम इंप्रूव करेंगे, कॉस्ट को कैसे कम करेंगे, है कि नहीं, कौन से चीज को कम करना है, किसको ज्यादा बढ़ावा देना है. हम अगर फाइनेंस को लाते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी व्हाट वी कॉल, कि लोन लाना कौन से वे में हम ला सकते हैं, कौन से वे में लाने से हमें बेहतर होगा, मतलब हमारे लिए इट प्रूव्ड टू बी गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कि ज्यादा इंटरेस्ट देना ना पड़े, कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी ना देना पड़े, इजीली हमें मिल जाए, और कौन से फिक्स्ड एसेट्स में हम इन्वेस्ट करेंगे, कौन से करंट एसेट में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे. ये सारे जो डिसीजंस हैं, क्लियर, ये लेने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ही सपोर्ट करता है टू द मैनेजमेंट. एज वी नो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग असिस्ट द मैनेजमेंट फॉर फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजंस एंड फोरकास्टिंग, जो कि काम है मैनेजमेंट टीम का फोरकास्ट करना, एंड दोज आर बेस्ड अपॉन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. Okay, clear? Next, it uses dynamic tools and techniques. As we know, management accounting have a number of dynamic tools and techniques which are very well upgraded according to the present situation, according to the globalized competitive world. Globalized competitive world. वो तरीके के हैं. क्या है वो सारे, जैसे हम देखा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, क्लियर, वर्किंग कैपिटल एनालिसिस, ये बजट बनाता है, मार्जिनल कॉस्टिंग, ओके, एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. ये जो सारे बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बाय यूजिंग दो टेक्निक्स, क्लियर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रिपेयर ए सॉलिड स्टेटमेंट, सॉलिड प्रिसाइज रिपोर्ट विच द मैनेजमेंट यूज to frame policies and plans which can be ultimately best and useful in the global scenario. Okay, clear? Then supply information. Yes, it supply information to the management accounting, to the users. Yes or no? User कभी अगर कोई भी कुछ भी पूछता है तो ये क्या करता है, सप्लाई करता है इंफॉर्मेशन, कि आपको जानना क्या है, बोलो, whether it is management or it is government or it is some outsider or any party. Clear? What you want? Just tell me what you want. आपको क्या चाहिए? आपको प्रॉफिट के बारे में जानना है, आपको परचेज के बारे में जानना है, आपको फैक्ट्री एक्सपेंसेस के बारे में जानना है, और नहीं तो ऑफिस एक्सपेंसेस, और नहीं तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, है कि नहीं, और नहीं तो सेल्स के बारे में जानना है, और नहीं तो हमारा बैड डेब्ट कितना हुआ जानना है, इक्विटी के बारे में जानना है, लायबिलिटीज के बारे में जानना है, क्लियर, और नहीं तो डेप्ट के बारे में जानना है, डिबेंचर के बारे में जानना है, और नहीं तो फिक्स्ड एसेट के बारे में जानना है. जो भी whatever you want to know, it can supply information according to your requirement. That is another features of management accounting. Okay? और ये हमने देख लिया नो फिक्स्ड नॉर्म्स, क्योंकि ये कोई भी फिक्स्ड नॉर्म्स मतलब रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर फॉलो नहीं करता है, कि ऐसे बनाना है, ये बनाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है. अकॉर्डिंग एज पर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इट कैन प्रिपेयर वट एवर मैनेजमेंट व्हाट एंड व्हेन एवर इट वांट्स. क्लियर? देन ये इंपॉर्टेंट फिक्स्ड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. बस ये देखो, ये बहुत है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग बता देता है कि दिस इज द प्रॉफिट फॉर दिस ईयर एंड दिस इज द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ दिस, कि फिक्स्ड एसेट ऐसा है, लायबिलिटी ऐसा है. क्लियर? एंड कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं ये अपना कॉस्ट स्टेटमेंट, ये अपना एक्सपेंसेस हो गया, और हम इसको ये ऐसे वे में कंट्रोल कर सकते हैं. बस इतना ही बोलते हैं. बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? इट एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. दैट मींस ये देखता है कि एक खर्चा अगर ज्यादा हो गया तो उसके रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फिगर्स. फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग ओनली मेजर द फिगर्स, ओनली इंटरप्रेट द फिगर्स, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एस्टेब्लिश द रीजन और रिलेशनशिप बिटवीन द, हमें कॉज एंड इफेक्ट, मतलब ये जो एक फिगर हमने दिया, ये फिगर का कॉज क्या है, क्यों इतना ये जो फिगर आया क्यों, और उसका इफेक्ट क्या है, मतलब क्यों आया ये फिगर. कॉज एंड इफेक्ट मतलब ना, मतलब ये हुआ, उसका रीजन क्या है. रीजन कि हमारा प्रॉफिट ये साल में ज्यादा हो गया, उसका रीजन क्या है, इधर अपना सेल्स बढ़ा है और नहीं तो कॉस्ट कम हो गया है, एक्सपेंसेस कम हुआ है. कौन सा है रीजन, ये उसको स्टेट करता है. क्लियर? अगर हम देखेंगे कि इस बार हमारा एसेट कम हो गया है, तो इट फाइंड द रीजन कि एसेट कम हुआ, क्यों एसेट कम हुआ, हाँ तो एसेट कम हुआ क्यों, क्योंकि लायबिलिटी भी कम हो गया, तो चलो सही है. नहीं, एसेट कम क्यों हुआ, क्लियर, क्यों कम हुआ, क्योंकि हमारे करंट एसेट्स में बढ़ गए, इसलिए फिक्स्ड एसेट कम हो गया.
कि ये खराब है कंपनी के लिए। क्लियर? सो इट एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ईच एंड एवरी फिगर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेदर इट इज लिंक्ड विथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट और एनी कॉस्ट स्टेटमेंट, सबके बीच में ये क्या करता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब एस्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप, जिससे हमें पता चलता है कि अगर हम इसके ऊपर फोकस करेंगे तो इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा, इसमें अगर कुछ अप डाउन हुआ तो इसमें उसका इंपैक्ट क्या रहेगा, उसके हिसाब से हम प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं। क्लियर? देन आ गया मॉडिफाइड डाटा। क्लियर? मॉडिफाइड डाटा मतलब एज वी नो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का खुद का कोई डाटा नहीं होता है, खुद का कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है। It use the information or data of financial accounting, cost accounting, then it modify it according to the requirement or according to the objective of management accounting। उसको जो चाहिए उसके हिसाब से ये क्या लेते हैं? देखो सिंपल है, सिंपल ले लो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, दो डिब्बा है, दो इंग्रेडिएंट्स हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मुझे चाय बनाना, मुझे चाय पीना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोला कि मुझे चाय पीना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पास कुछ है, कॉस्ट अकाउंटिंग ये बोला चाय पीना है, ठीक है पानी डालो। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब ले लो कि अपना जो है शुगर एंड टी उसमें डाल दिया। क्लियर? और मिल्क, मिल्क ले लो, कॉस्ट अकाउंटिंग मिल्क डाल दिया, बना दिया, दे दिया मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। बस यही है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट यूज द डाटा ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इट मॉडिफाइड डाटा, उसको मॉडिफाइड वे में यूज करता है, बिकॉज वो लोग जैसे देते हैं उतना वैसे यूज नहीं करता है, ये अपने हिसाब से मैनेजमेंट को जो चाहिए उसके हिसाब से वो मॉडिफाई करके यूज करता है। आप अगर रेशियो के बारे में पूछोगे तो रेशियो के बारे में बोलेगा, है कि नहीं? आप अगर कुछ खर्चे के बारे में बोलेगे तो खर्चे के बारे में, रेवेन्यू के बारे में तो रेवेन्यू, एसेट तो एसेट, लायबिलिटी तो लायबिलिटी। क्लियर? सो मॉडिफाइड डाटा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। नेक्स्ट, फाइनेंस एनालाइज फाइनेंशियल yes statement. It use various techniques, tools and techniques for what purpose? For analyze the financial statement, which is an undone task, जो कि नहीं हुआ है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने ओनली उसको इंटरप्रेट करके रख दिया है, एनालाइज नहीं हुआ है। वो एनालाइज करेगा, एनालाइज करके प्रिसाइज रिपोर्ट्स बनाएगा, जिससे कि रिपोर्ट बना के फिर उसको देगा मैनेजमेंट टीम को, जो कि वो बना सकते हैं अच्छा डिसीजन, फोरकास्ट कर सकते हैं। सो इट एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, and the last that it assist in for policy formulation. As we know, overally management accounting help or assist management in take policy or formulate policy regarding cost, expenses, revenue, sales, different expenses according to assets, fixed assets, current assets, investment, financing, everything सबको लेके जो भी पॉलिसी हमें बनाना है कंपनी के लिए, वो सारे के सारे हम बना सकते हैं बेस्ड अपॉन वेरियस इंफॉर्मेशंस प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, क्लियर? बस हो गया खत्म। आई होप इतने में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, उसका फीचर्स क्या है और वो कैसे ग्रोथ किया। क्लियर है? फिर देन आवर नेक्स्ट क्लासेस वी विल डिस्कस द अदर कॉन्सेप्चुअल थिंग्स अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड देन विल बी प्रोसीड टू द प्रॉब्लम्स पार्ट। Okay, so till then, see you, take care, goodbye.